amazing learners, welcome to the online classes of Shri Ram Public School. So dear learners, you know that this initiative has been taken by your one and only Shri Ram Public School so that you do not miss your crucial studies in this lockdown period also. So dear learners, as you know, sessions of English grammar are being taken by me, your one and only Soumya ma'am, a teacher at SRPS. So in today's lecture, we are going to discuss a very important part of English grammar, that is the vocabulary enrichment. So dear learners, you might be wondering that what this vocabulary enrichment means. क्या होता है ये vocabulary enrichment? So I shall explain you in very simple method that vocabulary जो होती है वो आपकी शब्दकोश होती है, मतलब कि वो words होते हैं जो आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में बोलते हैं. जैसे कि मैं आपसे अभी बातें कर रही हूँ तो मैं इस बातों में बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ, तो यही हमारा शब्द होता है, जैसे इंग्लिश में हम वोकैबुलरी कहते हैं. ओके, तो ये क्या होता है वोकैबुलरी एनरिचमेंट? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इन दोनों वर्ड्स को, वोकैबुलरी मतलब हमारे शब्द और एनरिचमेंट मतलब उसको इंक्रीज करना, उसको इम्प्रूव करना. सो इन अ ईजी वे वी कैन से दैट वोकैबुलरी एनरिचमेंट मीन्स it is an easy medium to increase your quantity as well as quality of vocabulary. Now you all might be wondering that vocabulary enrichment का मतलब तो मैम ने बता दिया, बट इसका यूज़ क्या होता है, आखिर ये हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है? So dear learners, this vocabulary enrichment is very much important in your life because you can see in your English examination you can't attempt any question since you are aware about the correct vocabularies. Okay? जब तक आपको करेक्ट इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में, मीनिंग के बारे में नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट नहीं कर सकते. आप उसको पढ़ेंगे और आपको कुछ और मीनिंग समझ में आएगा तो आप राइट आंसर्स कैसे लिख पाएंगे, राइट? सो आई थिंक यू माइट बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे विथ यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, इसके साथ ही साथ जो है कई बार वोकैबुलरी एनरिचमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं. कैसे पूछ लिए जाते हैं हम देखते हैं कि वोकैबुलरी एनरिचमेंट के जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि एंटोनिम्स, वो पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है. जैसे कि हम अपोजिट वर्ड मीनिंग कहते हैं. ओके, तो वो आपसे पूछ लिया जाता है, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं. देन सिनोनिम्स होते हैं जो कि आपके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, उससे भी रिलेटेड आपकी कई सारे सेम क्वेश्चन. होमोनिम्स होते हैं, मतलब कि एक सिमिलर वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन उसका काफ़ी हद तक सेम है और उसका मीनिंग डिफरेंट होता है. देन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस एक्सेट्रा. लाइक दिस इन योर एग्जामिनेशन मैनी ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वोकैबुलरी एनरिचमेंट. ओके, एंड बिसाइड इन योर एनुअल एग्जामिनेशन, इन योर सेशनल examination, this vocabulary enrichment is important as well as it is also important in your various other examination. How? Like there are several inter-school competition held, then there are Olympiads held. In that the English vocabulary, the synonyms, antonym, one-word substitution plays a very important part. Dear students, keep it in your mind. Okay, so beside this also in the future these vocabulary enrichment are very important. There is no competitive exam of English in which your vocabulary enrichment is not tested. This is are important in the examinations of banking, then various other examination, CAT examination, in which English is an important part. So I hope you are understanding the importance of vocabulary enrichment. Okay, now in our today's session of vocabulary enrichment we will be discussing about the one word substitutes, or this is also known as one word for many. What are this one word substitution? It is a verbal ability by which a group of words or a full sentence is replaced with a single word without creating any ambiguity or any changes in the मीनिंग. मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो होते हैं जो आपके एक सिंगल वर्ड के तौर पे यूज़ होते हैं. कहाँ पे यूज़ होते हैं? जब आपको किसी कहीं पे भी एक बहुत ही लंबा सा सेंटेंस दिया हो और उसके बदले जो है एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस आपके लिए यूज़ हो जाए तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं उसकी खासियत क्या होती है? उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होता, कोई भी डाउट नहीं होता है, और कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आएंगे वो आपके सेंटेंस का मीनिंग
नहीं चेंज करेंगे। वो बड़े से सेंटेंस को छोटे से एक वर्ड में अपने डिस्क्राइब कर देंगे, पर वो कभी भी आपको कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे और ना ही कभी भी आपके उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज करेंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर English grammar which you can never ever skip. Okay, so starting with today's session of one word for many or one word substitution, we will discuss the 25 most important kind of one word substitution which is used in your day to day life. So student, be very keen in this lecture and I am not asking you to by heart all this 25 one word substitution all at once. मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि one word substitution जितने भी आपके इस लेक्चर पर पढ़ाया जा रहा है वो आप एक बार में बाय हार्ट कर लें। I know this is very impossible. This is not possible for you. I can understand that. Okay, I am a teacher who is connected with you directly. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट है तो you can mention it below with the students. मुझे पता है कि आपके लिए ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार में बाय हार्ट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। हर एक बार में आप 5 से लेकर 10 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने की कोशिश कीजिए। बस उतना याद कीजिए, उसको माइंड में बार बार अपने रिवाइज कीजिए, फिर आप वीडियो को क्लोज कर दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम आप वीडियो को ओपन कीजिए, फिर जो है आप फर्दर 5 और फर्दर 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिमेंबर कीजिए। चाहे तो उसको कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको ये लंबे समय तक याद रहे। और इससे बार बार जब आप एक्सरसाइज करेंगे, देन एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन perfect. So I know that one day will be there that you will get a command over this one word substitution and the vocabulary enrichment will be on the tip of your tongues. So starting one by one, I will tell you the one word substitution along with its deep meaning. So your first one word substitution comes here. Yes, tan-ta-da. It is first one, something that can be heard. कुछ जब आप सुन सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ एक लंबा सा सेंटेंस है, टोटल 5 वर्ड्स हैं। ओके, इट्स सो बोरिंग राइट। सो इसकी जगह आप एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं, एक सिंपल सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसका मीनिंग यही होता है और वो बहुत ही क्लियर मीनिंग होता है, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा। सो समथिंग दैट कैन बी हर्ड, कोई भी चीज़ जब हमें सुनाई पड़ती है तो हम उसे वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं, हम उसे ऑडिबल बोल सकते हैं। व्हाट वी कैन से टू इट, audible. So dear learners, प्लीज़ फोकस ऑन वॉट आई एम स्पीकिंग ऑल्सो। ये नहीं है कि आप म्यूट करके वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपका क्या ले रही हूँ, इंग्लिश ग्रामर के लेसन्स ले रही हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नेवर एवर डू एनी ऑफ द स्पेलिंग एरर्स और एनी ऑफ द प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स। सो प्लीज़ फोकस ऑन हाउ आई एम स्पीकिंग, ताकि आपको वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट स्पेलिंग के बारे में बिल्कुल पता रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में एक भी स्पेलिंग मिस्टेक आपके मार्क्स को कट करवा सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज स्पेलिंग। नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज समथिंग रिटन बाय एन अननोन पर्सन। कुछ जो लिखा हुआ है किसी अननोन पर्सन के द्वारा, उसे हम एनोनिमस कहते हैं। जैसे कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लिखा हुआ रहता है, थॉट, पोएम, और उसके नीचे जब हमें ये नहीं पता होता है कि वो किसने लिखा है तो हम क्या लिख देते हैं, एनोनिमस, मतलब कि हमें राइटर के बारे में नहीं पता। ओके, आवर थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। जैसे कि हिंदी में नास्तिक बोलते हैं, तो उससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एथिस्ट। व्हाट इट इज सेड एज एथिस्ट। ओके, फोर्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन और वन पार्टी। गवर्नमेंट जो किसी एक पर्सन की होती है या फिर एक ही पार्टी की होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। ओके, देन फिफ्थ वन, अ लाइफ स्टोरी अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। कोई पर्सन जब अपनी खुद की जीवनी, खुद की लाइफ स्टोरी लिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब किसी पर्सन की कहानी, और ऑटो मतलब जब वो पर्सन उसे खुद लिखता है। सो इट इज़ ऑटो बायोग्राफी।
ओके, सिक्स्थ वन, आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए गवर्नमेंट इन अ फॉरेन कंट्री। ओके, किसी भी गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई पर्सन उस गवर्नमेंट के बिहाफ पे जब किसी दूसरी कंट्री में रहता है तो उसे एम्बेसडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे ऑफिसर्स को बाहर बाहर की कंट्रीज़ में भेजती है ताकि वहाँ पे जो हम इंडियंस रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रीवेंसेस को कोई सुनने वाला कोई अपना हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बेसडर। ओके, देन नेक्स्ट वन, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें भाग लेने वाले जो लोग होते हैं वो पहले से अपना मीटिंग का एक प्लान बना लेते हैं, क्या क्या उनको डिस्कस करना है, तो उससे क्या बोलते हैं, एजेंडा। सो हियर यू कैन सी डियर लर्नर्स दैट वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी वन सब्स्टिट्यूशन इन डिटेल, सो दैट बाय लिसनिंग ओनली यू कैन लर्न इट। ओके, आपको सुनते ही वो समझ में आ जाए, वो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए और आपको वो वर्ड याद हो जाए, इसलिए हम सब कुछ एक डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, if you like this detailed discussion, don't forget to like the video and comment below in the comment section. Okay, a state of growth between boyhood and youth. Okay, जो state होता है बचपन, एक लड़का जो होता है मतलब कि वो 10-12 साल का होता है, उसके बाद फाइनली यूथ 20 ईयर्स के बीच में जो एज होता है जिसे हम आसान भाषा में टीनेजर्स बोलते हैं, उसका ही दूसरा नाम है एडोलसेंस। ओके, object having life, this you might have studied many time, object having life are known as living being. Okay, in the same way we can say it as animate. Okay, जैसे कि हम लोग कुछ एनिमेटेड वीडियोस देखते हैं तो उसमें चलते रहते हैं चीज़ें, इंसान चलता है या जानवर वो चलते रहते हैं, तो दैट इज़ व्हाट एनिमेटेड, जिसमें लाइफ हो, दैट इज़ एनिमेट। गवर्नमेंट मैनेज बाई स्टेट ऑफिशियल, गवर्नमेंट को जब स्टेट के ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं, मतलब कि ऑफिसर्स वगैरह मैनेज करते हैं, स्टेट में जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ओके, 11th वन, अ पर्सन हु इज़ नॉट मैरिड। ओके, वो पर्सन जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है इज़ नोन एज बैचलर। ओके, आई होप दैट दिस ऑल आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन, 12th वन, टू स्पीक इल ऑफ ए पर्सन इन हीज एब्सेंस, किसी के बारे में बुरा भरा बोलना उसके पीठ पीछे, जैसे कि आसान शब्दों में चुगली बोला जाता है, राइट, यू माइट हैव लिसन दिस मैनी अ टाइम, दैट ओनली इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज बैक बाइट। ओके, किसी के पीछे उसकी बुराई करना। 13th one, the science which deal with life, obviously this you can tell without even seeing, that is yes, biology. Okay, the science which deal with life. Now 14th one, a person who believes everybody, जो person जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है, बहुत ही खुले दिल का होता है, उसे क्या बोलते हैं, credulous बोलते हैं, what we say it, credulous. Okay, 15th one, डैट विच कैन बी करेक्टेड, वो चीज़ जिसको करेक्ट किया जा सकता है, जैसे कि आंसर वगैरह आपके रॉन्ग हो गए तो आप उसको करेक्ट करके फिर से एग्जाम में लिख सकते हैं, राइट, जब तक कि आपके पास टाइम है, तो उससे क्या बोलते हैं, कॉरेजिबल। ओके, इट इज सेड एज कॉरेजिबल। देन 16th one is a period of 100 years. Obviously many of you might be knowing this is very easy, it is century. सचिन हमारा जब 100 रन्स लगाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, it is a century. So the period of 100 years or the 100-year term is known as 100-year anything is known as century. So I hope that you all are very much clear with the pronunciations also with me. And do try to repeat after me the each and every word as I am speaking it, so that you can practice enough amount of pronunciation of these difficult words. Okay, now 17th one, the peak point of a story or a plot, किसी भी story या किसी भी कहानी का जो एकदम लास्ट में जो एकदम सस्पेंस वाला खुलने वाला जो पॉइंट होता है ना, जो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम लोग देखते हैं, उसे क्या बोला जाता है, क्लाइमैक्स। ओके, देन 18th वन, अ प्लेस वेयर द डेड आर बरीड, जहाँ पे उनको बरी किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिमेंट्री। ओके, अ म्यूज़िकल एंटरटेनमेंट गिवन इन अ पब्लिक हॉल, किसी भी पब्लिक हॉल में जो म्यूज़िकल कंसर्ट होते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, उसे हम ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, कंसर्ट। ओके,
Now 21, one who eats human flesh. This you might have studied in biology is known as cannibal. Okay, canines होते हैं ना उनके दांत में, वो दांतों वाले जो canines होते हैं उसी के बेसिस पे इनका नाम रखा गया है cannibals. Okay. Now we are very close to the end of this session. In this session, as I already discussed, that we will discuss only 25 of one word substitution, so that the session doesn't become very much lengthy to you all. And next 25 one word substitution we will discuss in the next lecture. Okay, so be updated with all these topics. Stay tuned to your one and only channel Study Journey with Soumya ma'am. Okay, so 21st वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज हियर. अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जब एक सिंगल पर्सन एक गवर्नमेंट को चलाता है, सारी पावर अपने पास रख लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप. This thing you will study in your class 9th as well as in 10th. This is very important concern. कई कंट्रीज़ में जो होते हैं वो डिक्टेटर रूल किया करते हैं, जैसे आपने किंग जॉन यून के बारे में भी सुना होगा. सो ही इज़ अ पर्सन with whom whole government lies, who whole power lies, is known as dictator. So the form of government is known as dictatorship. Okay. Coming to the 22nd one word substitution, money or gift given to a girl at her marriage. ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. ये हमारे इंडियन सोसाइटी का बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म है, and it is known as dowry. Okay, it is known as dowry. Now 23rd, to injure one's reputation. किसी भी reputation को धूमिल करना, किसी की निंदा करना, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना, उसको क्या बोलते हैं? उसको defame करना. Okay. फेम मतलब आपको पता होगा, कोई पर्सन जब पॉपुलर होता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो मुझसे फेम कहते हैं, और जब हम उसकी रेपुटेशन को गिराते हैं तो हम उसके आगे डी लगाते हैं. सो दैट इज डी फेम. नाउ 24th वन, द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस बाय स्टेट्समैन. ओके, जो किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, तो वो जो मैनेजमेंट चलाते हैं अपना, उसे क्या बोला जाता है? डिप्लोमेसी. ठीक है, तो मैनेजमेंट टर्म को यहाँ पे डिप्लोमेसी क्यों बोला जाता है? मैनेजमेंट मतलब कि वो अपने, जैसे रणनीति कहते हैं ना, राजनीति जिसे कहते हैं, कि अपने राजनीति को मेंटेन करने के लिए दूसरों से दोस्ती करना और अच्छे रिलेशंस बनाना, तो ये सब कुछ आता है, मतलब पूरी की पूरी राजनीति आती है. सो दैट इज़ ओनली योर डिप्लोमेसी. Now the last one word substitution of today's lecture is a speech made without preparation. जब आपको अचानक से कोई टॉपिक दे दिया जाए और आपसे तुरंत बोलने को कहा जाए बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पर. ओके, focus on the pronunciation again and again. I'm repeating, dear students, dear learners, because this will be very helpful to you. As you know कि इंग्लिश बोलना आपके सोसाइटी में आपके रेपुटेशन को किसी से भी आगे कर सकता है, आपको एक अलग से एक फेम प्रोवाइड कर सकता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था. सो दीज ऑल आर वेरी हेल्पफुल टू यू. और अगर कोई गलत प्रोनाउंसिएशन करता है तो आप उसको खुद करेक्ट कर सकते हैं. ऑल आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर एग्जाम, नॉट ओनली इन योर करेंट सेशन बट इन योर एंटायर लाइफ. दीज ऑल क्विजेस आर वेरी मच पॉपुलर इन एनी काइंड ऑफ इंग्लिश ओलंपियाड्स, इंटर स्कूल competition. So do practice it. Okay, so this was all about today's lecture.